Hello, dear student. Good evening. So today we'll continue with the fifth lectures of light physics. Very interesting topic, that is refraction through glass slab or refraction in glass slab and lens. Different type of lens, and we will read in these lectures lens formula and magnification. When multiple lenses are there, means more than one lens, then how we can find out the combined lens? Okay, all these details will continue. Very interesting way, and you should follow these things. Okay, but before that, if you will go through the reflection and other things, you can observe the previous lectures in this channel or subscribe my channel, and simultaneously you can see the previous video, that is reflection and other. Search the career foundation in YouTube. Okay, simply without delay continue to the topic, that is light refraction through the glass slab and lenses. Simply, do you know what you mean by glass slab? Glass slab means the made up of glass, that is cuboidal shape. You have seen in your school lab. Okay, now you just go through the concept without delay. So continue with this topic. Simple refraction through the glass slab. Imagine this is a glass slab which is present in front of you. 2D, two-dimensional glass slab is there. And the refraction through the glass slab means what? When a oblique light, incident light, you fall on it. Just I will go through this, that you just try to understand. So when a light ray obliquely pass through it, or it pass, this is incident ray. This incident ray falls at the point. At the point O, will find out the normal. This is the normal, and this one is incident angle I, and this one is reflected angle R1. Pakad lo, it is R1. Okay, because two times refraction occurs. Then again, as it is denser medium and it is rarer medium, the incident angle I is less than, greater than. This is not correct. Actually, it is wrong. I think yes. Yes. Now just you observe incident angle, as it is rarer medium to denser medium, then incident angle is greater than refracted angle R1. Refracted angle R1. Okay. That means light ray come closer to the normal. Here just you imagine this is the refracted ray. When this refracted ray passes in the either end of the glass slab, at that time here also incident. At that time, if I draw, this is the normal, and this one is considered as I2. It is incident, that is I. If I consider I, this one is I2, and I2 and R1 is equal. So R1 is equal with I2. Then ये denser medium, light ray pass from denser medium to rarer medium. So when it move rarer medium, at that time this angle, just it is released out again, that is considered as emergent ray. This is your emergent ray. This is your emergent ray. Emergent ray. Emergent ray. Then this angle is called as emergent angle, angle E. Here the relation what? Now obviously reflection second wala I2 angle, incident angle is less than emergent angle E. Just you observe here three angle relations are there. Then here you will find out what the relation between incident angle and the emergent angle. If the incident angle will pass, that is incident angle without any deviation, it will produce the light ray. It will produce this dotted line. You just observe this is the produced light ray. Here you will find out what the emergent ray and incident ray are parallel with each other. And when they are parallel with each other and their distance between them, this distance between them, that is called the lateral shift or lateral displacement or lateral displacement. Lateral displacement. Lateral shift or lateral displacement, which is it?
perpendicular distance between two parallel line. One is emergent ray and another one is produced incident ray. This is the relation in the glass slab. Just you see what is the relation, how we can find out the relation. Just here you will find out what the relation between the incident ray and the emergent ray. Just you imagine. Okay. In case of glass slab, just I will draw here. This is the glass slab. Just again I will remind you. This is the incident point and this is the normal. This one is the normal. This one is the incident angle I. Okay. And ये refraction ऐसे हो जाएगा. Okay. This is R1 angle R1 and again it incident here. This angle I2 and this is normal and this is again move lines. This is angle E. Okay. Now it will produce. This is the produced light ray. This is the lateral displacement. This is the lateral displacement. Right? You get idea. So according to Snell's law, it will go simple. ये रिफ्रैक्शन कहाँ हो रहा है? ये पॉइंट में रिफ्रैक्शन, ये मीडियम 2 पकड़ लो, ये म्यू 2, ये म्यू 1, ये रिफ्रैक्शन एयर मीडियम म्यू 1, ग्लास मीडियम म्यू 2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स. तो सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 with respect to 1 is equal to sin I by sin R1. This is R1, पकड़ लो R1. तो इंसिडेंट एंगल एंड रिफ्रैक्टेड एंगल रिलेशन. Similarly, again here light ray pass from medium 2 to medium 1. Again air medium 2 to medium 1. Again you will find out the refractive index of medium 1 with respect to medium 2. That is sin I by sin R. Now, okay, you can get relation. Here medium 1 to 2, here medium 2 to 1. Again relation. Now we will find out what is the refractive index, this one and this one, relation reciprocal. Simply we know that refractive index of medium 2 with respect to medium 1 is equal to 1 divided by reciprocal of refractive medium 1 with respect to 2. Now you just refractive ये वैल्यू डाल दो यहाँ, ये वैल्यू ये R1 मतलब this one R1 पकड़ो, this one R1 and this one E, sin E. Just you 1 by ratio, then you will find out what sin I is equal to sin E. तो sin cancel, then I angle I is equal to angle E. So when you will get angle incident angle is equal to emergent angle, then obviously two lines are parallel. Then the incident ray and the emergent ray produce the incident ray and the emergent ray both are parallel to each other. Okay. So simple idea, you can get idea. Very interesting. Okay. Next proceed to the next part. Lateral displacement or lateral shift. So what is the lateral shift? I just told you. Just you observe lateral shift कैसा होता है, क्या होता है. Okay. एक बार समझ में आ जाए तो और भी अच्छा हो जाए. जस्ट सोचो, ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ये ग्लास स्लैब था, ये इंसिडेंट रे. ओके, देन ये इमेजिन कर लो, ये बैंड हो गया इस तरफ, फिर ये एमर्जेंट, फिर ये नॉर्मल हो गया, तो ये एमर्जेंट, ये एमर्जेंट रे, ये रिफ्रैक्टेड रे, ये इंसिडेंट रे. अभी सोचो, इसको प्रोड्यूस कर लेना. तो ये जो डिस्टेंस होता है ना, उसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट. ये होता है लेटरल डिस्प्लेसमेंट. सोचो, ये लेटरल डिस्प्लेसमेंट, लेटरल शिफ्ट, लेटरल शिफ्ट. तो लेटरल शिफ्ट और लेटरल डिस्प्लेसमेंट ये जो होता है ना, ये सामने है. ओके, तो सिंपल लेटरल डिस्प्लेसमेंट और लेटरल शिफ्ट के अंदर डिफरेंस क्या है ना, ये सिंपल लेटरल डिस्प्लेसमेंट और लेटरल शिफ्ट ये किसका ऊपर डिपेंड करता है, इसकी किसका ऊपर डिपेंड है, फैक्टर्स, कौन सा फैक्टर्स है. या सिंपल लेटरल डिस्प्लेसमेंट होता है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ, दिस इज द ओरिजिनल प्रोड्यूस्ड इंसिडेंट रे एंड the emergent ray or coming out from the glass slab. This is emergent ray. Okay, this is called lateral displacement or lateral shift. Okay, of the emergent ray. तो ये किसका ऊपर डिपेंड करता है, व्हाट आर द फैक्टर्स, किसका ऊपर ये डिपेंड करता है. सोचो ना, सिंपल ये डिपेंड करता है पहले, दैट इज lateral shift varies directly proportional to thickness of the glass slab. तो ये lateral shift, जो lateral shift होता है, lateral shift ये किसका ऊपर डिपेंड करता है, थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है. थिकनेस ऑफ द ग्लास स्लैब, ये ग्लास स्लैब अकॉर्डिंग टू ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. सोच लो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. थिकनेस जितना ज्यादा होगा लेटरल डिस्प्लेसमेंट उतना ही ज्यादा होगा.
ओके, then lateral shift is very directly proportional to incident angle. ये incident angle, as you know, incident angle I is equal to emergent angle. ये दोनों बराबर होगा, तो ये ज्यादा होगा तो ये तो ऑब्वियसली ये lateral displacement भी ज्यादा हो जाएगा, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल. ओके, नेक्स्ट lateral shift is directly proportional to refractive index ऑफ द ग्लास स्लैब. ये ग्लास स्लैब का refractive index ऊपर डिपेंड करता है. ओके, then fourth one is lateral shift very inversely proportional to wavelength of the incident ray. That I told you very beginning. Refraction is depend on the wavelength of the light ray because frequency remain constant. Okay, here these things you will keep in your mind and these are the factors affecting the lateral shift. Clear? ये lateral shift के बाद खत्म हो गया तुम्हारा रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब के बीच में जितना भी रिफ्रैक्शन हो रहा है. ओके, अभी चलते हैं लेंस की तरफ. नहीं, ये एक और आ जाए, उसका एप्लीकेशन क्या करते हैं, एप्लीकेशन सोचो. तो ये एप्लीकेशन में वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट लाऊंगा, सोचो. ये जो रिफ्रैक्शन होता है ना, इसके एपरेंट डेप्थ और ओरिजिनल डेप्थ, मतलब पानी के कोई डिफरेंट मीडियम में इफ कुछ भी तुम देख रहे हो तो आपको ओरिजिनल पोजीशन दिखाई नहीं देगा. ये एपरेंट पोजीशन क्या होता है समझो. सपोज ये डायग्राम को मैं थोड़ा और आसान से बना दूंगा. सपोज मान लो इसमें एक 5 रुपीज कॉइन इसका अंदर है. ये पानी इतना तक है, ठीक है. तो ये जब पानी इतना तक है तो क्या करें ना, लाइट रेस अपन यहां से पास करते हैं. तो आपको ये सपोज मान लो ये तुम्हारा इंसिडेंट है. ये सपोज मान लो ये नॉर्मल. ओके, ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम चल रहा है तो बैंड एविट्रम का नॉर्मल ऐसे चला जाएगा. ये सीधा नहीं जाएगा, ये स्लाइटली बैंड हो जाएगा. तो ऑब्जर्वर यहां पर ऑब्जर्वर का आई है तो वो देखेगा तो तुम्हारा नजर ऐसे जाकर ऐसे बैंड हो जाएगा, क्या नहीं होता है. तो सीधा रहता है, सीधा स्ट्रेट. सोचो ये स्ट्रेट मतलब ये ऐसा दिखाई देगा, ऐसा मतलब इसका पूरा ऊपर से ये बस नजर में आ गया. ये जो होता है ना इसको बोलते हैं ओरिजिनल डेप्थ. ये पानी से ये रियल डेप्थ, ये तुम्हारा रियल डेप्थ, ये ओरिजिनल डेप्थ, रियल डेप्थ. बट हमको क्या दिखाई दिया ना, ये इतना दिखाई देगा. ये उसको बोलते हैं क्या, अपरेंट डेप्थ. समझ में आ गया. ये जो चेंज होता है, ये जो डॉटेड लाइन चेंज हो गया, उसको बोलते हैं वर्टिकल शिफ्ट. वो लेटरल शिफ्ट हो रहा था ग्लास स्लैब में, यहां पर क्या होता है, वर्टिकल शिफ्ट होता है. इसको बोलते हैं वर्टिकल शिफ्ट. वर्टिकल वो शिफ्ट हो गया. समझ में आएगा. तो ये वर्टिकल शिफ्ट किसका ऊपर डिपेंड करता है पता है ना, ये मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर डिपेंड करता है. तो whenever we are observing anything in any और दूसरा मीडियम, any other medium, if you find out कोई दूसरा मीडियम में कोई ऑब्जेक्ट को देखो तो उसका ओरिजिनल पोजीशन दिखाई नहीं देगा. समझ में आया ना. तो तुमको सपोज तुम पानी का अंदर फिश और मछली के देख रहे हो, मतलब तुम मछली का ओरिजिनल पोजीशन देख नहीं रहे हो, तुमको दिखाई देता होगा वर्चुअल पोजीशन और अपरेंट पोजीशन. जो वर्चुअल पोजीशन होता है अपरेंट पोजीशन, एंड ऑलवेज थिंक अपरेंट पोजीशन इज ऑलवेज हायर देन द ओरिजिनल पोजीशन. अपरेंट पोजीशन इज ऑलवेज हायर देन द ओरिजिनल पोजीशन. तो दिस इज द सिंपल कॉन्सेप्ट इज गिवन. एंड इसका रिलेशन क्या होता है ना, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रिलेशन होता है. मतलब सिंपली रियल डेप्थ बाय अपरेंट डेप्थ इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम. तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज्यादा होगा ये तुम्हारा डिस्टेंस उतना ज्यादा हो जाएगा. ओके, तो सिंपल सा एप्लीकेशन, वेरी ब्यूटीफुल एप्लीकेशन, उसको वर्टिकल शिफ्ट भी बोलते हैं. और तुम्हारा रियल डेप्थ का भाई अपरेंट डेप्थ भी क्वेश्चन आ सकता है, तुम क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हो. कैसा, ये समझ में आ गया तो एक क्वेश्चन सॉल्व करो, देख लो. क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये है. बोला था ये पानी के बीच में मछली का बीच में पानी, वो पानी का अंदर क्या होता है, मछली को क्या दिखाई देता है, ये क्वेश्चन वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. यू ऑब्जर्व.
A fish in the pond of water apparent depth is 6 centimeter. Apparent depth is 6 centimeter. Then what is the actual depth of the pond? Actual depth of the fish. Fish actually कहाँ पर है वो निकालेंगे. Okay. If refractive index of the water is given 4/3. If refractive index of the water is given 4/3. Just you think. Okay. Calculate. What? Simple. This is your apparent depth. This one is apparent depth. So I can say apparent depth. Apparent depth. Okay. Depth is equal to 6 centimeter. Original depth, this is original depth. Okay, original depth पता नहीं, वो क्वेश्चन मांग रहा है. Refractive index और म्यू गिवन कितना 4/3. तो सिंपल आई टोल्ड यू क्या पता है ना, सिंपल पता है हमको ओरिजिनल डेप्थ डिवाइडेड बाय apparent depth is equal to refractive index mu. ओके, वैल्यू पुट करो. ओरिजिनल डेप्थ पता नहीं, रख लो ओरिजिनल डेप्थ डिवाइडेड apparent depth कौन सा है 6 सेंटीमीटर. 6 is equal to refractive index कितना 4/3. अभी कैलकुलेशन कर लो. ओरिजिनल डेप्थ is equal to, तो ओरिजिनल डेप्थ इज इक्वल टू मल्टीप्लाई करो 24 डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 8 किसका सेंटीमीटर. सोच लो तो कितना डिस्टेंस ऊपर चल रहा है 2 सेंटीमीटर. तो मैं बोलता हूं वर्टिकल शिफ्ट कितना हुआ. वर्टिकल शिफ्ट इज इक्वल टू 8 माइनस 6 इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर ऊपर दिखाई दिया. समझ में आ गया ना. तो क्वेश्चन में इफ वो मांग रहा है वर्टिकल शिफ्ट को मछली कितना ऊपर दिखाई देता ना 2 सेंटीमीटर ऊपर दिखाई देता. समझ में आ गया. तो ऐसा क्वेश्चन सिंपल बहुत सारे क्वेश्चन आता है एग्जाम में, सॉल्व कर लो हो जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन ये तुम्हारे लिए ट्राई योरसेल्फ. ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए क्वेश्चन सॉल्व कर लो. कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं. कुछ भी दिक्कत होगा कमेंट बॉक्स में लिख लो, सॉल्यूशन में कर दूंगा तुमको फिर. ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. ये नेक्स्ट आ गया तुम्हारा क्या लेंस. क्या होता है लेंस, क्या होता है पता है. अभी लेंस के बारे में समझे. तो लेंस क्या होता है ना, एक इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट होता है लेंस. तो एग्जैक्टली लेंस क्या होता है ना, सिंपल लेंस होता है कोई सरफेस का एक कार्व सरफेस होना चाहिए. कोई एक सरफेस में एक कार्व सरफेस है तो उसको बोलते हैं सिंपल लेंस. तो सिंपल लेंस क्या है, a piece of transparent medium bounded at least one spherical surface. On basis of this one, lenses are mainly divided into two part, two spherical part. That one is convex or converging nature and another one is concave or diverging nature. On basis of the diverging nature and converging nature बहुत सारे डिफरेंस उसका होता है. सोचो कन्वेक्स लेंस क्या होता है, बाई कन्वेक्स उसको बोलते हैं डबल कन्वेक्स और बाई कन्वेक्स. दिस इज बाई कन्वेक्स वो वन साइड प्लेन वन साइड कन्वेक्स दैट इज प्लानो कन्वेक्स and one side concave and one side convex that is concavo convex. Okay, similarly here double concave, planar concave and convex concave. ये तुम्हारा टाइप ऑफ लेंस अकॉर्डिंग टू एवरी लेंस यू विल फाइंड आउट एटलीस्ट वन कर्व सरफेस. जस्ट यू सी ये दोनों कर्व सरफेस, ये दोनों कर्व सरफेस, ये वन प्लेन सरफेस वन कर्व, ये दोनों कर्व सरफेस. तो ये कन्वर्जिंग नेचर के ऊपर ये तीनों, ये डाइवर्जिंग नेचर के ऊपर ये तीनों. ओके, ये जो लेंस होता है इसका बीच में तो बहुत सारे डिफरेंस भी क्रिएट कर सकते हो. देखो ये कन्वेक्स क्या होता है ना, बीच में ये जो मिडिल होता है मिडिल थिकनेस ज्यादा होता है. जब तक एज तरफ जाएंगे पास तरफ जाएगा ना तो मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, थिन मिल जाएगा, थिन. तो ये थोड़ा डिफरेंस में भी तुम यूज कर सकते हो. चलो इसके बारे में डिटेल्स समझे. लेंस क्या होता है, ये लेंस होता है. लेंस का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होता है, क्या लेंस का कैरेक्टरिस्टिक सोचो. तो फर्स्ट क्या होता है ना, ये जो लेंस जो होता है ना, ये एक कर्व सरफेस. सोच लो ये एक कर्व सरफेस, मतलब ये एक कर्व सरफेस, ये एक कर्व सरफेस, ये दोनों का कर्व सरफेस जो कॉमन हो गया. तो ये कर्व सरफेस का कोई तो सेंटर होगा ना. सोच लो ये कोई के साथ सरफेस सेंटर होगा, इसका भी कोई कर्व सरफेस का सेंटर होगा. ये मान लो ये सेंटर, ये सेंटर, ये बीच में जो कॉमन पॉइंट ना और इसका जो दोनों सेंटर को ज्वाइन करने के बाद जो पॉइंट आता है उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर. ओ उसको बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर. ये होता है ऑप्टिकल सेंटर.
The optical center is a point given length which any ray passes undeviated. इसका मतलब क्या समझो बेटा, ये जो ऑप्टिकल सेंटर है ना, इसमें ये जो लाइन प्रिंसिपल एक्सिस जो सोचते हैं इमेजिनरी, यो भी स्ट्रेट विदाउट एनी रिफ्रैक्शन इट पासेस, ये भी इस तरफ भी सीधा जाएगा, ये भी पास हो जाएगा, ये भी पास हो जाएगा, कोई डेविएशन नहीं होता है ऑप्टिकल सेंटर का बीच में। जितना भी लाइट पास करेगा कुछ भी चेंज नहीं होगा, वो चेंज नहीं होगा, कुछ भी चेंज नहीं होगा। ओके, समझ में आया? उसको डिलीट कर लो, चलो डिलीट कर लेते हैं। ओके, नेक्स्ट समझो, फिर इस तरफ चले तो समझ में आ जाएगा। ये ऑप्टिकल सेंटर, इसका भी ऑप्टिकल सेंटर, ये दोनों का ऑप्टिकल सेंटर, ये दोनों ऑप्टिकल सेंटर, एनी लाइट रे विल पास दैट इज मूव अनडेविएटेड, सिंपल अनडेविएटेड, ये अनडेविएटेड लाइट रे। फिर सेकेंड तरफ से चलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस जो होता है ना, प्रिंसिपल एक्सिस का दोनों सेंटर जो था वो सेंटर को टच किया, तो ये C1 C2 ये दोनों जो सेंटर था, ये सरफेस का सर्कल का सेंटर, इस तरफ जो सर्कल, ये सरफेस, ये कर्व सरफेस का सेंटर, ये दोनों का सेंटर को जो लाइन टच करता है ना, उसको बोलते हैं क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। इमेजिनरी लाइन, दिस ऑल आर इमेजिनरी। ये भी मान लो ये एक स्फीयर, देखो ये एक स्फीयरिकल पार्ट, इसका सेंटर ये स्फीयरिकल पार्ट, इसका सेंटर, ये दोनों का सेंटर, समझ में आया ना? ये दोनों का सेंटर से जो लाइन जाता है वो प्रिंसिपल एक्सिस हो जाता है। समझ में आ गया? चलो, तो ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये प्रिंसिपल एक्सिस, ये इमेजिनरी लाइन। फिर प्रिंसिपल फोकस क्या होता है ना? सिंपल ये लेंस जो होता है बाइकॉन्वेक्स लेंस का, इसका इमेज कैसे फॉर्मेशन होता है? सोचो, ये कॉन्सेप्ट कहां से आया? जस्ट थिंक। तो ये जो कन्वेक्स लेंस है ना, ये बाइकॉन्वेक्स लेंस है, ये कन्वेक्स लेंस को थोड़ा इमेजिन, थोड़ा करीब क्लोजली इफ यू ऑब्जर्व, देन यू विल फाइंड आउट दिस इज ए behave as a prism, this one behave as a prism and this one also behave as a prism, ये दोनों prism की behave करेंगे। ओके, एंड ये वाला ग्लास स्लैब का तरफ behave करते हैं, ये सेंटर। तो ये ऑप्टिकल सेंटर इमेजिन कर लो, ये प्रिंसिपल एक्सिस तो इस तरफ जाता है, ये ऑप्टिकल सेंटर। मान लो whenever any light ray in any direction it falls in the principal in the prism, at that time it light ray will bend, refract and it bend towards the base, towards the base। इसका भी कोई लाइट नहीं, कोई सा एंगल में डाल दो, ये क्या होता है ना, बेंड होकर जाएगा बेस की तरफ। ये जो प्रिज्म होता है, प्रिज्म का जो बेस होता है, ये प्रिज्म का बेस तरफ। इसीलिए ये कन्वेक्स लेंस का क्या होता है ना, ये मीडियम क्या होता है ना, ये जो मीडियम सोचो बेटा, एक वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, ये ऑलवेज डेंसर मीडियम होना चाहिए। ये जो ग्लास मीडियम, जो भी मीडियम है लेंस का, वो डेंसर होना चाहिए, नहीं तो वो कंसेप्ट ही गलत हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। ओके, ये डेंसर होना चाहिए, देन इट बेंड टुवर्ड्स द बेस। सेम concept is applied in this case, just you observe, same concept is applied in this case। same concept means what? Now just observe here, whenever any parallel light ray will pass to the principal axis, then it obviously pass to the principal axis here, and this one also pass and it meet at this point. This called as focus, and this focus is called as principal focus, and the real focus. Here real focus, and it is also called as principal focus. Okay. Similarly, here you will see in case of divergent lens, okay, or concave lens, parallel light ray pass, तो it move undeviated, मतलब ये भी डाइवर्जेंट नेचर। क्यों? सेम कॉन्सेप्ट है, पता है, सेम कॉन्सेप्ट सोच लो और थोड़ा करीब से सोचो। इसको मानो ये का, इसको भी मानो ये एक प्रिज्म की तरफ, ये एक प्रिज्म की तरफ, ये बीच वाला ग्लास स्लैब की तरफ हो गया। एनी लाइट विल पास, समझ ये लाइट है ऐसा इसका ऊपर होगा, सोचो ये पास होगा ऐसा, ये पास हो जाएगा, क्योंकि बेस बेंड टुवर्ड्स द बेस, ये बेस की तरफ बेंड होगा। सेम कॉन्सेप्ट इज अप्लाइड हियर। ओके, सेम here the incident ray will bend away from the norm, away from, तो if in this case you will find out this is divergent nature, ये इस तरफ जाता है, मीट करने का चांस है ही नहीं, तो इमेज कैसे फॉर्मेशन होगा? इमेज का फॉर्मेशन नहीं होगा। here only if will produce imaginary produce, then here the focus will turn, and this focus is what? Virtual focus, this is your virtual focus।
वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस सीरीज बोलते हैं, इसको भी बोल सकते हो वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस। ये भी प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल क्योंकि ना प्रिंसिपल एक्सिस में ही है तो इसीलिए प्रिंसिपल फोकस, सिंपल सीधी सी बात है, ठीक है। तो नाउ यू कैन गेट द प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस के ऊपर आइडिया मिल गया, चलते हैं। फिर क्या होता है ना अपर्चर। अपर्चर क्या होता है? इमेजिनरी एक्सिस। देखो ये जो कार पार्ट है ना, उसको जब व्हेन वी आर गोइंग टू कैलकुलेट, हम जब कैलकुलेशन में उसको पार्ट करते हैं तो कार का कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकता है, इसलिए हम उसको इमेजिन कर लेते हैं वो स्ट्रेट है, करीब करीब क्लोजली इट इज स्ट्रेट, दैट इज सिंपल कॉल्ड एज अपर्चर। सिंपल लॉजिक है ये। थ्रू द डिपेंड, इट डिपेंड ऑन द स्क्वायर ऑफ द अपर्चर। ये याद रख लो, ये light passes, very interesting, see, so the brightness of the intensity of the image formed by the lens with depending on the light passing through the lens will depend on the square of the aperture। तो स्क्वायर ज्यादा होगा, ये अपर्चर का जो इंटेंसिटी ऑफ द लाइट ज्यादा पास कर जाएगा, ओके। तो ये अपर्चर किसका ऊपर डिपेंड करता है ना, इंटेंसिटी। ये थोड़ा याद रखो, ये वेरी इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन आता है एनटीएसी और दूसरा ओलंपियाड एग्जाम में, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो इमेज फॉर्मेशन के लिए कुछ कैरेक्टर होता है ना, वो कैरेक्टर ऑफ बोथ मिरर, बोथ सॉरी लेंस, मिरर नहीं लेंस। तो ये फर्स्ट चलते हैं कन्वेक्स लेंस। ये कन्वेक्स लेंस, व्हेन लाइट is parallel to the principal axis, parallel to the principal axis, always pass through the focus, just you imagine, okay। Same in case of these concave lens, when light ray pass parallel to the principal axis, it move divergent, then it will produce, then it immediately, this is a virtual focus, here real focus। Similarly, when light ray pass through the focus, okay, the emergent ray or refracted ray, as a lens is very thin, so it is considered as a refracted lens। So the refracted rays are always parallel with the principal axis if it pass through the focus। Similarly here also, if light ray pass through the focus, just you see, this is the light ray joint focus, because here virtual, always imagine virtual focus, then light ray will pass parallel with the principal axis। And most important concept what? Now any light ray will pass through the optical center undeviated, here also optical center undeviated। On the basis of this character, we can observe the image formation, how image is formed, just you observe here, just like the mirror, here also certain conditions are there. Which type of condition? Now those have real focus, those have real focus, they have a number of the conditions to form the images, but those have virtual focus, there are less conditions, okay। Just you observe image formation। next तरफ चलते हैं, image formation in the lens। here all the informations in front of you, ray diagram and detailed concept, so it is helpful you to make a note, but details I will explain, follow, okay। when object is at infinity, पहला condition object, ये object position, object O is at infinity। तो जहां पर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी होता है क्या होता है, सोचो। ऑब्जेक्ट इंफिनिटी होता है, ये कन्वेक्स लेंस होता है, तो कन्वेक्स लेंस में ऐसे भी इमेज तुम ऐसे भी कर सकते हो, सोच लो ये कन्वेक्स लेंस, तो ये लाइट रे पैरेलल आता है, ये पैरेलल ले लो, पैरेलल विद द प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये कौन पॉइंट ऑप्टिकल सेंटर ओ डाल दो, ये फोकस लाइट से पास हो जाएगा, ये भी फोकस लाइट से पास हो जाएगा, ये बन गया फोकस। ये फोकस से डबल जो सी होता है यहाँ पर हम 2f यूज करते हैं, इस तरह में दो, ये सरफेस का भी सेम है, ये भी फोकस है, ये सरफेस का भी 2f है, तो बियॉन्ड 2f से आ रहा है, तो ये जहां पर टू लाइन मीट ईच अदर, तो एट दिस पॉइंट क्या होगा, इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये इमेज का कैरेक्टर क्या होगा, ये इमेज का कैरेक्टर होगा रियल इन्वर्टेड डिमिनिश, मैग्निफिकेशन इज मच मोर लेस देन नेगेटिव, रियल होता है ना नेगेटिव, तो ये रियल इमेज फॉर्मेशन होता है, ये रियल इमेज, ओके। तो व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन बियॉन्ड, ये बिटवीन इंफिनिटी एंड 12 और बियॉन्ड 12 पॉइंट बियॉन्ड 12,
तो मिनिमम 2 ray are required. Just you see, one is parallel, pass through the focus, and another pass through the optical center undivided, and meet here the image is formed, and this image nature what? Real, inverted, and diminished. Okay. Next you observe when the object is at 2f. So when at 2f, the image is formed also at 2f, and it is same size. Magnification is -1 and equal size. सोचो. Okay. Again ये 2f बिटवीन ये f 12 में था, फिर चला गया 12 और f का बीच में, बिटवीन इमेज 12 का बियॉन्ड चला गया तो लार्ज इमेज हो गया. मैग्निफिकेशन इज -1. नेगेटिव ऑलवेज है फॉर रियल, याद रखना बेटा. रियल मिरर पे सीखे था ना, प्रॉब्लम कुछ नहीं हुआ. और जहां पर ऑब्जेक्ट फोकस पे है, ये जहां पर ऑब्जेक्ट फोकस पे है, इमेज तो फॉर्मेशन होगा ही, क्योंकि ये कन्वर्ट हो रहा है तो इंफिनिटी में फॉर्म, तो ये इंफिनिटी में फॉर्मेशन होगा. और जो नेचर होता ना हाईली एनलार्ज, ऑलवेज यू रिमेंबर ये दोनों का पोजीशन, ये दोनों का पोजीशन रिवर्स होता है, क्योंकि लाइट ओबे रिवर्सिंग प्रिंसिपल. ऑलवेज याद रखना, रिवर्सिंग प्रिंसिपल. लाइट में ऑलवेज ओबे द रिवर्सिंग प्रिंसिपल. Then between focus and pole, when between focus and pole का बीच में आ गया f1 and focus, ये ऑब्जेक्ट ये बीच में, ये और f इसका बीच में, तो ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा सोच लो, वर्चुअल. तो ये वर्चुअल इमेज, सेम ये वर्चुअल इमेज. समझ में आ गया इमेज फॉर्मेशन? बहुत आसान है, अच्छा से समझ में आ जाएगा. ये नोट्स तुम्हारा सामने है, थोड़ा वॉच आउट कर लो, हो जाएगा इमेज फॉर्मेशन. ये इमेज इन केस ऑफ व्हाट न कॉन्वेक्स लेंस. सोचो ये कॉन्केव लेंस में, ये कॉन्केव लेंस में इमेज फॉर्मेशन हो जाएगा. ये कॉन्केव लेंस में क्या होता है ना, ये इमेज दो तरीके से होता है. पहले क्या होता है ना, इफ ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी में, ऑब्जेक्ट यहां पर इंफिनिटी में, तो व्हेन ऑब्जेक्ट आर एट इंफिनिटी, जस्ट यू इन हियर ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट ओ इज एट इंफिनिटी. तो व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, दिस पैरेलल लाइट will become parallel light, and the parallel light will pass back, deviate, divergent lens, deviate. So if you will join, then here the image will form. This one is image what? Obviously virtual, and it is coincide. Nature if you find out, nature what? It is virtual, erect, point size very small, point size. If you will side magnification is much more less than 1. Okay, मतलब ये वर्चुअल हो गया. बट कहीं भी ले लो, दोनों तरफ से, एनीवेयर. तो ये ले लो एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ लेंस, इन फ्रंट ऑफ लेंस. लेंस का इन फ्रंट किसी हाल में उसको ले लो, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ओ करो ऑब्जेक्ट. ये सेकंड कंडीशन, ये ओके. तो क्या होगा ना, इमेज फॉर्मेशन होगा. पहले वन लाइट इज मूव स्टेट, दैट इज मूव डेविएट. Then when deviated produced, just you imagine, and another light ray which is undeviated pass the image intersection. This is the image in form, and this image appeared made, तो image is virtual. तो here nature क्या होगा, same virtual होगा, virtual, erect, diminished होगा, always diminished होगा. क्या होता है, मैग्निफिकेशन इज लेस देन 1, मैग्निफिकेशन की लेस देन, कहीं पे भी रख लो, ये इमेज होगा. ये दो कंडीशन है किसमें, कॉन्केव लेंस में. समझ में आया? तो कॉन्वेक्स और कॉन्केव में पूरा इमेज फॉर्मेशन का आ गया प्रॉपर्टीज. तो ये इमेज फॉर्मेशन आने के बाद हम सिंपल चलते हैं. ये जब इमेज फॉर्मेशन हो गया तो उसका मैग्निफिकेशन क्या होना चाहिए, लेंस. फार्मूला क्या होना चाहिए, स्फेरिकल फार्मूला. ये न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे. तो न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे तो हमको सबसे बड़ा इंपोर्टेंट क्या है बेटा, सबसे बड़ा इंपोर्टेंट क्या है, साइन ऑफ कन्वेंशन. तो पहले साइन ऑफ कन्वेंशन तरफ चलते हैं. इन केस ऑफ साइन ऑफ कन्वेंशन, जस्ट सोचो, इन केस ऑफ साइन ऑफ कन्वेंशन, ये कॉन्वेक्स लेंस पकड़ो. ये कॉन्वेक्स लेंस का क्या होता है, ऑप्टिकल सेंटर O होता है. ये ओरिजिनल होता है, मतलब ओरिजिनेट. कार्टेशियन सिस्टम का ओरिजिन जहां पर होता है, ये ऑप्टिकल सेंटर O. तो यहां पर ऑब्जेक्ट रख लो, कोई भी ऑब्जेक्ट, ये U रख लो. तो U कौन सा होगा, U ऑलवेज नेगेटिव होगा, U ऑलवेज नेगेटिव होगा. ओके, सोचो. फिर क्या होता है ना, फोकल एंगल, पैरेलल लाइट ने पास किया, ये आ गया,
ये फोकल लेंथ, ये यहां से ये फोकल लेंथ, ये एफ, तो ये फोकल लेंथ, ये एफ, फोकस आ गया फोकल लेंथ, तो एफ कौन सा है? पॉजिटिव, तो एफ पॉजिटिव होगा, याद रख लो एफ पॉजिटिव होगा। ओके, इमेज यहां पर था, जस्ट अभी सोचो इमेज कहां पर था, ये यहां पर है, ये इमेज लेंस का इधर साइड में था, ये इधर साइड में था, मतलब ये ओरिजिन है, तो ये पॉजिटिव था, पॉजिटिव था ना? नहीं, पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव था, बट यहां पर क्या हो गया? नेगेटिव। तो जब जहां पर वर्चुअल नेगेटिव और जहां पर इमेज डिस्टेंस इज पॉजिटिव, दैट मींस रियल, तो सोचते हैं। ओके, चले, तो ये तो b इज इक्वल टू पॉजिटिव जहां पर रियल होता है, ये रियल पकड़ लो, एंड b इज इक्वल टू नेगेटिव जहां पर होता है ये वर्चुअल। कंडीशन कहां पर है? वर्चुअल कब होगा? ना व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन, लाई बिटवीन f1 एंड ये फोकस का बीच में, ऑप्टिकल सेंटर बीच में जो ऑब्जेक्ट होता है, तो इमेज ये तुम्हारा मिल गया क्या? ना कॉन्वेक्स लेंस। सोचो ये कॉन्वेक्स, तो ऐसा भी कॉन्केव लेंस का क्या होता है? कॉन्केव पकड़ लेते हैं, ये इसका भी ऑप्टिकल सेंटर O, दिस वन इज O, ऑब्जेक्ट यहां पर ले लो, ये ऑब्जेक्ट, तो ये तुमको मिलेगा U इज इक्वल टू नेगेटिव। फोकस क्या होता है? लाइट रे, इसे चलेगा, ये चला गया लाइट रे, तो ये प्रोड्यूस होगा, सपोज मान लो ये फोकस, तो F यहां पर क्या होगा? नेगेटिव, वर्चुअल फोकस नेगेटिव होगा। इमेज ऑलवेज यही फॉर्मेशन होता है, दोनों तरफ से चेक कर लो, ये देखो इमेज कहां पर होगा? ये यहां पर देखो इमेज कहां पर होता है? ये लेफ्ट साइड ऑफ द ओरिजिन। ओके, तो ये भी क्या होगा तुमको? ना नेगेटिव ही होगा, क्योंकि ये ऑलवेज वर्चुअल इमेज, क्योंकि ऑलवेज वर्चुअल इमेज। ये दोनों साइन यूज करना है, कहां यूज करना है? लेंस फॉर्मूला। ये क्या है? लेंस फॉर्मूला, 1/v माइनस 1/e इज इक्वल टू 1/f। सिंपल सा लॉजिक है। मिरर फॉर्मूला क्या था? लॉस था। लेंस फॉर्मूला क्या है? माइनस है। बस हो गया ना। चलिए, ये इंपॉर्टेंट थिंग, लेंस फॉर्मूला में जो भी u v f जो भी यूज करना है बेटा, मोस्ट इंपोर्टेंट साइन ऑफ कन्वेंशन को यूज करने का बाद ही करना पड़ेगा। पहले साइन ऑफ कन्वेंशन, एंड रिपीटेडली आई टोल्ड व्हेनेवर यू आर गोइंग टू सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो सबसे बड़ा क्या चीज है? साइन ऑफ कन्वेंशन के साथ डेटा इनपुट कर लेंगे। क्या क्या डेटा गिवन इन द क्वेश्चन, राइट डाउन विद साइन ऑफ कन्वेंशन, उसके बाद अप्लाई करो मिरर फॉर्मूला और लेंस फॉर्मूला, सब सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। ये आ गया तुम्हारा लीनियर मैग्निफिकेशन। ये लीनियर मैग्निफिकेशन, तो लीनियर मैग्निफिकेशन पता है क्या? लीनियर मैग्निफिकेशन relation between hi by ho, and simple सा equation here, simple hi if ho is not given, simply you can go through the magnification v by u, but same thing if the image is real and inverted, the magnification is always negative। ये अच्छा से याद रखना। and when image is virtual and erect, ये always positive। ओके, ये अच्छा से याद रखना। ये नोट्स तरह लिख लो एक बार, फिर पढ़ाई कर लो, हो ही जाएगा। एनी क्वेश्चन यू विल सॉल्व, गारंटेड सॉल्व हो जाएगा, गारंटेड। डिटेल्स जस्ट यू ऑब्जर्व व्हाट लेवल ऑफ द स्लाइड फॉर यू, जस्ट यू थिंक। ओके, नेक्स्ट मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू इमेज हाइट बाय ऑब्जेक्ट हाइट hi by ho, और here v by u, just we let v by u, or if focal length is given, image distance v is given, तो you can go through this one, f minus v by f, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज गिवन, मतलब ये f by f प्लस u डाल दो, मैग्निफिकेशन डायरेक्टली निकल जाएगा। ये डायरेक्ट क्वेश्चन तुम यूज कर सकते हो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करना है। ओके, क्लियर? तो नाउ वी विल अप्लाई these things in the calculation of these numerical problem. Let us see another one thing important here, power of the lens is equal to, now what is the power of the lens? The power of the lens is equal to the degree of convergence, the measure of the degree of convergence or divergence of the light with volume on it। उसको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या चाहिए? ना the power is equal to reciprocal of the focal length 1/f, reciprocal of the focal length if it is in meter, if it is centimeter तो 100 by centimeter, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, डाल दो, हो जाएगा।
इसका एसआई यूनिट जो पावर होता है डायरेक्टर डी में रिप्रेजेंट किया जाता है। और यहां भी साइन को कन्वेंशन मत भूलना। इन केस ऑफ कन्वेक्स सोचो, इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस फोकल लेंथ एफ इज इक्वल टू पॉजिटिव, तो पावर कौन सा आएगा, पी भी आएगा, किसका पी भी आएगा पॉजिटिव में, पी भी आएगा पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव डायरेक्टर मान लेंगे, पॉजिटिव डायरेक्टर में आ जाएगा। ओके, सिमिलरली इन केस ऑफ कॉन्केव लेंस, ये सोचो कॉन्केव, तो कॉन्केव लेंस में क्या होता है ना, एफ इज इक्वल टू ऑलवेज नेगेटिव होता है ना, तो ये पावर भी कितना आ जाएगा नेगेटिव, पावर नेगेटिव डायरेक्टर, नेगेटिव डायरेक्टर सोचो, तो ये नेगेटिव डायरेक्टर है, एक पॉजिटिव, जहां पर नेगेटिव इज गिवन मतलब समझो ये तुम्हारा कौन सा लेंस है ना, कॉन्केव लेंस है, कॉन्केव लेंस, यस। एंड जहां पर तुम्हारा पॉजिटिव पावर मतलब ये कन्वेक्स लेंस है, समझ में आ गया ना, चलो बढ़िया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, क्या है ये कॉन्टैक्ट लेंस। When more than two lenses are there, when more than two lenses are there, at that time you have to find out the total power. Total power of the lens is equal to sum of the individual power. Sum of the individual power. Here, these things I have given to you, and you can go observe these details. If two lenses are contact with each other, इसका ये जो लेंस है, इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर, ये ऑप्टिकल सेंटर, ओके। So at that time, if we find out that this is the object and object distance is considered, this one is object distance and this one is v and this one is v, complete v is this one. मतलब कंबाइंड पावर से निकाल रहे हैं, ये ऑब्जेक्ट कंबाइंड पावर से ही इमेज फॉर्मेशन होगा, ओके। समझो एक ही लेंस में होता तो सपोज मान लो ये वन लेंस में इमेज पास भी ये होता, ये दूसरा लेंस हो गया, फिर यहाँ पर डेविएशन हो गया, ये इमेज 2 में होती, ठीक है। तो इसी का डेरिवेशन किया हूं, सो सिंपल सा लॉजिक है, 1/v1 फर्स्ट लेंस में, चलो 1/v1, ये v1 इसको ले लो v1, इसको ले लो v1, ये 1 ये u तो बराबर दोनों लेंस के लिए u है, कॉन्टैक्ट लेंस, तो ये नेगेटिव u इज इक्वल टू 1/f1। सिमिलरली ये नेगेटिव लेंगे पॉजिटिव, ये मिल गया फर्स्ट इक्वेशन में। सेकंड इक्वेशन में दूसरा लेंस की तरफ पकड़ लेते हैं, नेगेटिव v एंड नेगेटिव दिस वन 1/f2, ओके। ये दोनों लेंस बराबर है, ओके। सपोज मानो दिस इज इक्वल टू दोनों का ये दोनों को सम कर लिया, फोकल लेंथ ये मिल जाएगा, इसका मतलब ये तुमको मिल गया। तो इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, दिस इज इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। रेसिप्रोकल जो होता है वो क्या होता है, पावर होता है, तो ये रिजल्टेंट पावर इज इक्वल टू पावर ऑफ द इंडिविजुअल लेंसेस, तो ये याद कर लो। When two or more lenses are in contact, then their resultant power is equal to sum of the individual power. तो resultant power P is equal to P1 plus P2 plus dot up to Pn. Okay, whatever the lenses are there, all lenses are contact. They are in contact. If in between them gaps are there, this is not applicable. Okay, तो ये याद रख लो, ये contact lens के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आता है बोर्ड में भी, ओके। कैसा क्वेश्चन आता है, ऐसा एक क्वेश्चन आ सकता है, चेक कर लो क्या क्वेश्चन है, सॉल्व कर सकते हो, वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, पोज करके सॉल्व कर लो, पोज करके सॉल्व कर लो। लिखो, ए कन्वर्जिंग लेंस ड्यू टू रियल स्मॉल पॉइंट इन ए कॉन्टैक्ट, ओके। द लेंस हैज 9 सेंटीमीटर फ्रॉम द प्रिंट, देन प्रोड्यूस ए मैग्निफिकेशन ऑफ पॉजिटिव 2.5। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, व्हाट इज द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस, मतलब एक लेंस गिवन, ओके। कन्वर्जिंग लेंस यूज्ड टू रीड ए स्मॉल प्रिंट को अच्छे से पढ़ाई करने के लिए जो हम यूज करते हैं मैग्नीफाइंग ग्लासेस, कन्वेक्स लेंस जिसका फोकल लेंथ लिस्ट होना चाहिए, ये यूज किया है। द लेंस होल्ड 9 सेंटीमीटर, मतलब ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज गिवन, जस्ट यू सी, ये तुम्हारा तुमको मिल गया क्या, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो u इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, ये 9 सेंटीमीटर मिल गया मुझे। ये मुझे क्या मैग्निफिकेशन, तो मैग्निफिकेशन मिला, मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू मिला 2.5 की पॉजिटिव मैग्निफिकेशन। मुझे मांग रहा है फोकल लेंथ का लेंस, फोकल लेंथ कैसे निकालूं, वेरी इजी, सोच लो। मुझे मिला है मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू क्या पता है, v/u, समझ में आ गया, v/u इज इक्वल टू मैग्निफिकेशन। अभी इससे निकाल लो, v इज इक्वल टू mu, v इज इक्वल टू mu। अभी u का वैल्यू डाल दो, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑब्वियसली ये 9 सेंटीमीटर है,
तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ऑलवेज आई टोल्ड यू u इज ऑलवेज नेगेटिव, जे कहीं भी u नेगेटिव होता है। ओके, तो v इज इक्वल टू ये डालो, v इज इक्वल टू 2.5, ये पॉजिटिव 2.5 इनटू नेगेटिव 9, ये इनटू नेगेटिव 9, तो v मिल जाएगा, v मिल जाएगा, कितना मिलेगा, ये v मिल जाएगा नेगेटिव, ये u भी नेगेटिव, v भी नेगेटिव में आ जाएगा, मतलब रियल इमेज फॉर्मेशन होता है ना वर्चुअल इमेज। नेगेटिव v यार वर्चुअल इमेज फॉर्मेशन होगा, तो ये तुमको मिल जाएगा कितना 22.5 सेंटीमीटर। ये v मिल गया, ये v मिल गया, u मिल गया, तो मुझे लेंस फॉर्मूला डाल दो 1/f इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u, वैल्यू तो पता है, तो 1/f इज इक्वल टू 1/b, तो 1 बाय नेगेटिव 22.5 ये माइनस 1 बाय u भी मुझे मिला नेगेटिव नहीं, सिंपलीफाई कर सकते हो ना, तो सिंपलीफाई कर लो, तो ये मुझे बोले 1/f इज इक्वल टू ये मिला 1 बाय और नेगेटिव 1 22.5, ये नेगेटिव प्लस हो गया 1/9, तो सिंपलीफाई कर लो, फोकल लेंथ निकल जाएगा, फोकल लेंथ निकाल लो, अप्रॉक्सीमेटली 15 सेंटीमीटर तरफ आएगा, ठीक है, उसको सिंपलीफाई कर लो, ये दोनों वैल्यू को सिंपलीफाई कर लो, ये वैल्यू मिल जाएगा तुमको, ठीक है ना, उसको भी सिंपलीफाई करना पड़ेगा, क्लास 10 का लेवल खुद तो कर सकते हो कुछ। ओके, कर लो, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत सारे ब्यूटीफुल क्वेश्चंस तुम्हारे लिए। ओके, ये क्वेश्चन सॉल्व कर लो, लेंस को अच्छा से समझो, समझ में आ जाएगा, उसके बाद जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करना है ना कर लो। ये क्वेश्चन तुम्हारे लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, पकड़ लो, ये क्वेश्चन नंबर 1 क्वेश्चन, ये क्वेश्चन 1, a convex lens of focal length is given placed at a contact with a concave lens of 15 centimeter of focal length, then focal length का combined पावर निकालना है, पावर निकालो, पावर क्या होता है 1 बाय कंबाइंड पावर कैपिटल F मान लो 1 बाय F1 प्लस 1 बाय F2 निकालो, हो जाएगा, पावर इंडिविजुअल पावर निकालो, सम कर लो, हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन, ये concave lens of focal length 15 cm form image 10 cm from the lens, मतलब u and v given, then how far object is placed, u निकालना है and draw the diagram करना है, ये बोर्ड लेवल का क्वेश्चन होता है, 3 मार्क का क्वेश्चन। ओके, ये क्वेश्चन नंबर 3। थर्ड क्वेश्चन क्या होता है, an object of 5 cm of the length is placed at a distance of 20 cm in front of a convex mirror। ओके गुड, ये मिरर नहीं है, रेडिएशन का चलो मिरर, मतलब मिरर लेंस का एक पंच करके कुछ क्वेश्चन दे दिया, इसको सॉल्व कर लो। इसके बाद क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स फॉर मी एंड फॉर यू आल्सो। ओके, एंजॉय एंड कीप लर्निंग, ऑल द बेस्ट, गुड लक, कंटिन्यू।